Assalamu alaikum and welcome back. So we were discussing different aspects of molecular genetics. Today we will be discussing about mechanism of DNA replication. Mechanism of DNA replication. So in the previous lecture we discussed about semi-conservative mode of replication, and we provided an experimental proof to prove that DNA replication is semi-conservative, and the experiment was conducted by Messelson and Stahl. Later on, today itself now we will be discussing about the mechanism of DNA replication. So mechanism of DNA replication, we will break it into three subheadings. One is unwinding of DNA. Unwinding of DNA, or we call it unzipping of DNA. Unzipping of DNA. Subheading second, activation of nucleotide monophosphates. And number three, that is formation of new chain. Formation of new chain. So we will have to discuss the process of replication under these three subheads. One is unwinding of DNA. Second is activation of nucleotide monophosphates, and third is formation of new chain. So let us move further. The first step is unwinding of double-stranded DNA. अब मसला क्या है? If this is a double-stranded DNA molecule, what do we require? This double-stranded DNA molecule has to be unwound to provide single-stranded DNA. So पहले आपको double-stranded DNA को unwind करना है. अनवाइंड करने के बाद आपके पास क्या आएगा? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है, इट एक्ट्स एज टेम्पलेट फॉर रेप्लिकेशन. इट एक्ट्स एज टेम्पलेट फॉर रेप्लिकेशन. दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज DNA undergoes unwinding. DNA is unwound, but it is not unwound in a random fashion. DNA को जब unwound होना पड़ता है, it unwinds at a specific location. Say for example here, this site at which DNA is unwound, this region is called as initiation site, or we may say it is known as origin of replication. Origin of replication.
सो वो प्लेस, वो जगह जहां पे डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अनवाइंड होता है to form single stranded DNA, that site is called initiation site or origin of replication. Got my point? So there is one important thing. So double stranded DNA is unwound किस जगह, अभी आपने याद रखा वो, at the origin of replication, origin of replication. Point number 1, point number 2. Now अब जब आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आ गया, लेकिन मसला यहां पर एक रहता है कि अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे डीएनए अनवाइंड होता है, किसकी वजह से होता है? हाउ इज दैट पॉसिबल? डीएनए इज अनवाउंड with the help of enzyme. What is that enzyme known as? Helicase. What is that enzyme known as? Helicase, or sometimes it is called unwindase, or we also call it suivalase. Sorry. So DNA is unwound with the help of enzyme helicase, unwindase or suivalase. Once DNA is unwound, ऑलराइट, अब देखिए यहां पे ख्याल रखना है, यहां पे अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इफ यू, दिस पॉइंट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. व्हाट इज दिस? दिस इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. अब जहां हेलिकेस का क्या काम है? हेलिकेस का काम है, हेलिकेस ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स. अब इस स्ट्रैंड और इस स्ट्रैंड को आपस में जोड़ने वाले जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, उनको कौन ब्रेक करता है? हेलिकेस. अब जरा देखिए यहां पे, यहां हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, यहां पे आपको अब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल गया, लेकिन ये वाले जो साइड्स हैं, यहां पे जो डीएनए है दैट विल अंडरगो सुपर कॉइलिंग. क्योंकि आप यहां से जब खोल रहे हैं डीएनए को, तो जो साइड में डीएनए होगा उसको क्या होगा? दैट विल अंडरगो सुपर कॉइलिंग. अब इस सुपर कॉइलिंग से बचाने के लिए क्या होता है? देयर आर स्पेशल एंजाइम्स, दोज एंजाइम्स आर नोन एज, सो यहां पे लिखा, वंस डीएनए इज अनवाउंड, सुपर कॉइलिंग ऑकर्स. अभी सुपर कॉइलिंग से कौन बचाता है? द सुपर कॉइलिंग इज relieved by enzyme, very important, topoisomerase. What is that enzyme known as? Topoisomerase. लेकिन यहां पे एक चीज याद रखनी है आपको, topoisomerase is also known as DNA gyrase in prokaryotes.
देखिए प्रोकैरियोट्स में जो टोपोआइसोमेरेसिस होते हैं उनको वहां एक और नाम से पुकारा जाता है, व्हाट इज दैट? डीएनए गायरेज। अब आप बोलोगे सर ये कैसे सुपर कॉइलिंग या टेंशन जो आ जाता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, उसको कैसे रिलीव करते हैं? टोपोआइसोमेरेस या डीएनए गायरेज का क्या काम है? ये डीएनए की स्ट्रैंड में ना निक डाल देता है, कट डाल देता है, ताकि जो टेंशन है वो रिलीव हो जाए, ठीक है ना? सो टोपोआइसोमेरेसिस इंट्रोड्यूस nicks, shortcuts, introduce nicks in a DNA strand to relieve the supercoiling. To relieve the supercoiling. अब फिर इन निक्स को अब अगर कट डाल दिया डीएनए में, फिर उसको भरना भी पड़ेगा, कट को सील भी करना पड़ेगा। उसके लिए वी हैव अदर एंजाइम्स, दोज आर कॉल्ड लाइगेसेस, बट वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन। सो यहां तक भी आपने देखा कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम? हेलिकेस एंजाइम unzips to form single stranded DNA. Single stranded DNA आ गया आपके पास, तो आपके पास टेम्पलेट आ गया फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। नई डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज करने के लिए आपके पास क्या आ गया? टेम्पलेट, ठीक है ना? अब हेलिकेस का क्या काम है? हेलिकेस ब्रेक्स विच बॉन्ड्स? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब ड्यूरिंग अनवाइंडिंग प्रोसेस, अनजिपिंग प्रोसेस, देयर इज सुपर कॉइलिंग इन डीएनए, है ना? अब उस सुपर कॉइलिंग से बचाने के लिए which enzymes are there? There are enzymes known as topoisomerases. In eukaryotes there is topoisomerase second for this purpose, okay? And in prokaryotes we have DNA gyrase. And what is the function of topoisomerase or DNA gyrase? To introduce nicks, small cuts in a DNA strand, okay, so to relieve the tension. This is next point. Another point, important point, what is that? Once there is, so you can take screenshot of this. So once there is unwinding at the origin of replication, what happens? A Y-shaped structure is formed. A Y-shaped structure is formed, and this Y-shaped structure is known as replication fork. Replication fork. Got my point? अब see here, यहाँ पे आपके पास ये ये तो डबल स्ट्रैंडेड है, यहाँ पे तो सिंथेसिस होगा नहीं। सिंथेसिस कहाँ होगा? फॉर एग्जाम्पल द डायरेक्शन पोलैरिटी ऑफ दिस स्ट्रैंड इज 5' to 3', and the polarity of this strand will be opposite. It is anti-parallel, isn't it? So it is 5' to 3'. This strand will be 3' to 5'. Got my point? Great. So helicase provides this single stranded DNA, isn't it, which acts as template. Then I told you topoisomerases, they relieve the tension, supercoiling part, but there is always a tendency of this single stranded DNA to undergo reformation of hydrogen bonds. यहां पे इस स्ट्रैंड और इस स्ट्रैंड के दरमियान क्या हो सकता है? रिफॉर्म हो सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स।
तो हमारे लिए तो वो मौजू नहीं है, रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए वो मौजू नहीं है ना। तो कुछ प्रोटीन्स होते हैं, दे गेट अटैच्ड टू दिस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। These proteins are called SSBPs, single strand binding proteins. So there is one important point here. To prevent reformation of hydrogen bonds between single stranded DNA SSBP. What is SSBP? Single strand binding protein. Single strand binding protein comes into play. Is it clear now? So single strand binding protein अटैच हो जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में ताकि ये वापस हाइड्रोजन बॉन्ड ना बना पाए। ठीक है, अब देखिए यहां पे दिस वॉज अबाउट अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। पहला स्टेप जो हमने बताया था, मैंने रेप्लिकेशन प्रोसेस को बताया था आपको 3 सब हेड्स में डिवाइड करने के लिए, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए और अनजिपिंग ऑफ डीएनए, देन एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। सो फर्स्ट सब हेड इज ओवर टिल हियर। अब यहां पे देखिए आप सब हेडिंग 2, व्हाट इज दैट? That is activation of nucleotides. अब न्यूक्लियोटाइड्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये न्यूक्लियोटाइड्स होती कहां पे है? देखिए AMP. Since we are talking about DNA, it will be now DAMP, deoxyadenosine monophosphate. Likewise, we have DGMP, deoxyguanosine monophosphate. Likewise, we have DCMP, and we have another one, DTMP. These are monophosphates. What are these? Monophosphates. What you need to do? You need to activate them. Activate करने के लिए you use phosphate. आपको फॉस्फेट ग्रुप अटैच करना पड़ेगा, और वो भी एक फॉस्फेट नहीं, 2 फॉस्फेट, बिकॉज यू नीड टू कन्वर्ट मोनोफॉस्फेट्स इनटू ट्राइफॉस्फेट्स। सो यहां पे आपको क्या देंगे? DATP, देन DGTP, देन DCTP, and we have DTTP. These are triphosphates, and you know triphosphates जो होते हैं, these are activated nucleotides. Activated nucleotides. ठीक है, अब यही एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स यूज होंगे इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए ऑन द टेम्पलेट। ठीक, सो एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, हाउ डज दैट ऑकर? अब ये न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं मोनोफॉस्फेट्स, ये कहां पे अवेलेबल होते हैं? दीज आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म में ऑलरेडी होते हैं, अब इनको सिर्फ एक्टिवेट करने की जरूरत है, और एक्टिवेट कौन करता है? यस, एडिशन ऑफ फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइफॉस्फेट्स। अब यहां जरा देखिए, दिस इज सब हेडिंग 2। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन।
So third subheading is formation of new chain. ठीक, अब जरा यहां देखिए, अब आपके पास एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स तो हैं, अब जरा यहां देखिए, see there is one important enzyme which takes part in replication and that enzyme is known as DNA polymerase. DNA polymerase. अब यहां पे याद रख रहे हैं, क्योंकि हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है ना, प्रोकैरियोट्स में कैसे रेप्लिकेशन होती है, तो DNA polymerase, there are 3 types of DNA polymerases in prokaryotes. एक होता है that is DNA polymerase first. Another is DNA polymerase second. And another is DNA polymerase third. These are 3 different types of DNA polymerases in prokaryotes. किनमें? Prokaryotes. इनमें से जो मेन एंजाइम है जो रेप्लिकेशन में सबसे सिग्निफिकेंट एंजाइम है, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज थर्ड. इसको हम एक और नाम से पुकार सकते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज रेप्लिकेस. As the name indicates, DNA polymerase, it is involved in polymerization. Polymerization means addition of nucleotides. अब जरा यहां देखिए, ये तो टेम्पलेट है ना. अब टेम्पलेट के यहां सपोज फॉर एग्जांपल देयर इज adenine, there is guanine, thymine, cytosine, adenine. This is present on template strand. You have to synthesize a new strand, isn't it? So that strand will be synthesized by DNA polymerase third. What is that enzyme? Also known as replicase. Great. So how many types of DNA polymerases occur in prokaryotes? 3. DNA polymerase first, second and third. What is the significance of these 2 polymerases? We will take that later on. See here now. There is one important limitation with DNA polymerase third. वो limitation क्या है? ये खुद ब खुद रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता. कौन? DNA polymerase third यानी रेप्लिकेस एंजाइम जो है, ये ऑन इट इज ओन रेप्लिकेशन इनिशिएट नहीं कर सकता. इसलिए इसको एक छोटे से ना आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ती है. आरएनए प्राइमर, फॉर एग्जांपल दिस इज एन आरएनए प्राइमर. ठीक, अब जरा देखिए, ये स्ट्रैंड जो है, दिस इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट, इजंट इट? जो नई स्ट्रैंड बनेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? व्हाट विल बी द डायरेक्शन? 5 प्राइम टू 3 प्राइम. Got my point? So there is one limitation of DNA polymerase. What is that? It cannot initiate DNA replication on its own. So it will require an RNA primer. So this is RNA primer. Got it? So this is an RNA primer. अब ये RNA primer बनाता कौन है? So यहां पे हम इनिशिएट कर सकते हैं. One important limitation of DNA polymerase third is it requires
the formation of a small primer, RNA primer, sorry, presence of a small RNA primer. अब देखिए ये RNA primer जो है, ये RNA primer कहां से आता है? RNA primer is synthesized by अब जरा देखिए यहां पे, चूंकि ये आरएनए है तो आरएनए सिंथेसाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज. कौन सा एंजाइम? आरएनए पॉलीमरेज. ग्रेट. लेकिन ये आरएनए किसके अगेंस्ट बना? डीएनए के अगेंस्ट, है ना? सो डीएनए एक्ट्स एज ए टेम्पलेट और आरएनए पॉलीमरेज फिर क्या बनाता है? आरएनए प्राइमर. सो कहने से देन आरएनए प्राइमर इज सिंथेसाइज्ड बाय ए डीएनए डिपेंडेंट RNA polymerase. इसको हम एक और नाम से जानते हैं. What is that? Primase. This enzyme is also known as primase. Okay. So यहां पे शॉर्ट स्ट्रेच बन गई 9 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग. दिस इज एन RNA प्राइमर. इसकी डायरेक्शन क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम. ये जो 3 प्राइम एंड है ना, कौन 3 प्राइम एंड जो है इस आरएनए प्राइमर का, इट प्रोवाइड्स OH, फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप. क्या प्रोवाइड करता है? फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू द डीएनए पॉलीमरेज फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन. अब जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा कौन? डीएनए पॉलीमरेज. वो किससे ऐड करेगा उनको? दिस OH ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डीएनए पॉलीमरेज टू ऐड न्यूक्लियोटाइड्स. अगर ये OH नहीं होता तो फिर डीएनए पॉलीमरेज मजीद पॉलीमराइजेशन नहीं कर पाएगा. You got my point? So यहां पे याद आपको रखना है कि RNA primer provides free hydroxyl group to the DNA polymerase. अब देखिए जरा, खैर यहां पे RNA primer आ गया. इस RNA primer को अब कौन एक्सटेंड करेगा आगे तक? DNA polymerase थर्ड. ओके, सो ये बनाएगा. ठीक. एक और अहम चीज जो यहां आपको मैं बावर कराने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड रेप्लिकेस एंजाइम, इट कैन ऐड न्यूक्लियोटाइड्स. दैट मीन्स ये पॉलीमराइजेशन कर सकता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम. सो डीएनए पॉलीमरेज कैन ऐड nucleotides only in 5 prime to 3 prime direction. अब जरा यहां देखिए, यहां एंड से डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट हो गई 5 प्राइम टू 3 प्राइम. अब यहां इस एंड से अगर जाओगे ना, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? 3 प्राइम टू 5 प्राइम. लेकिन उस डायरेक्शन में डीएनए पॉलीमरेज डीएनए को सिंथेसाइज नहीं कर सकता. इसलिए जो ये वाली स्ट्रैंड है यहां तो ओके है, यहां तो डायरेक्शन ठीक है, लेकिन यहां इस वाले स्ट्रैंड पे डीएनए सिंथेसिस ऑकर्स फ्रॉम द सेंटर. देखिए यहां से स्टार्ट होगा. सो ये प्राइमर बन गया यहां पे आरएनए प्राइमर. ठीक है. और ये अब डीएनए पॉलीमरेज बनाएगा डीएनए. ठीक है. खैर, दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस स्ट्रैंड where the DNA synthesis occurs from the end. अब यहां एंड से स्टार्ट होता है, यहां पे डीएनए कंटिन्यूअसली बनता है विदाउट एनी ब्रेक. दिस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए
which is synthesized continuously, this is called as leading strand. What is it known as? Leading strand. Got it? But this strand, where the new DNA synthesis, new DNA is formed from the center, DNA is formed in patches, not continuously. अब हर डीएनए सेगमेंट बनाने के लिए यहां पे आपको एक प्राइमर की जरूरत पड़े। देखिए आरएनए प्राइमर बन गया, उसके बाद डीएनए बन गया, शॉर्ट सेगमेंट, दिस इज अबाउट 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग दिस फ्रैगमेंट। इसके बाद फिर प्राइमर बन गया और उसके बाद डीएनए, ठीक, उसके बाद फिर प्राइमर बन गया आरएनए प्राइमर, उसके बाद फिर डीएनए। कहने का मतलब यह है कि ये वाली जो स्ट्रैंड है ये कंटिन्यूअसली नहीं बनी। हियर डीएनए इज फॉर्मड इन शॉर्ट स्ट्रैंड्स, शॉर्ट फ्रैगमेंट्स। दीज फ्रैगमेंट्स आर नोन एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। What are Okazaki fragments? Short fragments of DNA. Short fragments of DNA. और ये वाली जो स्ट्रैंड है, क्या यहां डीएनए कंटिन्यूअसली बना या डिसकंटिन्यूअसली? यस, डिसकंटिन्यूअसली बना है ना। तो दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज लैगिंग स्ट्रैंड। इसको हम क्या बोलते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड। सो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर फाउंड ऑन लैगिंग स्ट्रैंड। गॉट माय पॉइंट? सो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स और शॉर्ट फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए फाउंड इन लैगिंग स्ट्रैंड। So I think this is clear. So RNA primer is synthesized by a DNA dependent RNA polymerase, which is also called as primase. So you can take a screenshot so that we can move further. So on one strand, DNA polymerase third synthesizes DNA continuously. This strand is called leading strand. The other strand, yes, बच्चे, the other strand is synthesized in a discontinuous manner. In a discontinuous manner and is known as lagging strand. What are Okazaki fragments? Yes, short fragments of DNA,
short fragments of DNA in lagging strand are known as Okazaki fragments. अब यहां जरा देखिए, ग्रेट, यहां तक हो गया। मसला है हमें डीएनए बनाना है, लेकिन यहां भी आरएनए है जो मैंने व्हाइट से डिमार्केट किया है। आरएनए आरएनए आरएनए, वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस आरएनए, isn't it? So उसके लिए हम क्या करेंगे? We have an enzyme that is called as DNA polymerase first. What is that? DNA polymerase first. Okay. So yes. DNA polymerase first. Is also known as Korenberg enzyme. शाबाश, क्या नाम है इसका? कोरेनबर्ग एंजाइम। अब जरा देखिए यहां पे, ये जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है ना, इसकी बहुत अहम सिग्निफिकेंस है यहां पे। इट रिजल्ट्स इन द रिमूवल ऑफ दीज आरएनए प्राइमर्स। और यहां प्राइमर्स की जगह ये क्या बनाता है? डीएनए। सी, ये डीएनए, ये बन गया डीएनए, ये बन गया डीएनए। सो कैन वी से DNA polymerase first, DNA polymerase first, DNA polymerase first is responsible for removal of RNA primers. Removal of RNA primers. It also causes filling of gaps. अब जब प्राइमर रिमूव हो गया तो गैप हो गई है ना, so those gaps are also filled by DNA polymerase first. अब यहां जरा देखिए, आप देखिए यहां डिसकंटिन्यूटी है। प्राइमर जो रिप्लेस अभी किया किसने? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ने। इसको आप ज्वाइन करना है ना मेन डीएनए के साथ। यहां भी डिसकंटिन्यूटी है, यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी। सो जो ये डीएनए को आपस में अब जोड़ने का मसला है, ठीक है ना, उसके लिए हमारे पास एक और एंजाइम है जो इनको सील करता है। सो दीज डीएनए सेगमेंट्स आर सील्ड by another enzyme. That enzyme is called as DNA ligase. What is that enzyme known as? DNA ligase is responsible for ligation of DNA. अब DNA जो यहाँ पे छोटी छोटी गैप्स थी उनको अब सील करने का काम कौन करता है? DNA ligase. Is it clear now? Great. अब यहाँ पे एक जो अहम चीज आपको याद रखनी है, वो क्या है? अब देखिए
डीएनए पॉलीमरेज जब पॉलीमराइजेशन करते हैं ना, मतलब नई नई न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता रहता है कंप्लीमेंट्री फैशन में। यहाँ गोनिन है, यहाँ साइटोसिन डालेगा, थाइमीन, यहाँ वो एडेनिन डालेगा, साइटोसिन, यहाँ गोनिन डालेगा, थाइमीन, यहाँ एडेनिन डालेगा। कभी कभी ना रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड भी इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं समटाइम्स ड्यूरिंग फॉल्टी रेप्लिकेशन, तो उसमें भी कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जब जाता है तो पॉलीमराइजेशन करता है, लेकिन ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम फॉर एग्जाम्पल जाता है तो पॉलीमराइजेशन। इट कैन मूव बैकवर्ड्स आल्सो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, लेकिन तब ये पॉलीमराइजेशन नहीं करेगा, तब ये क्या काम करेगा, दैट इज कॉल्ड एज प्रूफ रीडिंग। कोई रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड अगर इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसको रिमूव करता है और वहां फिर नई न्यूक्लियोटाइड जो सिग्निफिकेंट न्यूक्लियोटाइड होती है उसको डाल देता है, ठीक है ना। सो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड हैज 3 प्राइम टू 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, सो प्रूफ रीडिंग में क्या काम करता है, in this process a wrong nucleotide is replaced by a correct one। जो करेक्ट न्यूक्लियोटाइड होती है, ठीक है, वही इनकॉर्पोरेट होती है। ये किसका काम है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। सो दैट इज ऑल अबाउट रेप्लिकेशन। आई थिंक जो मेन हॉलमार्क पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, वो हमने डिस्कस किए रेप्लिकेशन के बारे में, ठीक है ना।